Hello student, in today's video lecture we will be discussing a very important topic about the viscosity. The viscosity is the exclusive property of every fluid. Viscosity is seen in the case of liquid as well as in the case of gases. But this property is more in the case of liquid. लिक्विड के अंदर जो विस्कोसिटी प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी गैसेस के कंपैरिजन में ज्यादा होती है. ठीक है. सो व्हाट इज दिस विस्कोसिटी दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल इन दिस टॉपिक. ठीक है. तो स्टूडेंट, व्हेन द लिक्विड इज फ्लोइंग देन its flow is in the form of different layers which are sliding over each other. This type of flow is known as the laminar flow. I write this thing on the board. When liquid is flowing on horizontal surface, its flow is in the form of different layers sliding over each other. Such a flow is called laminar flow. इस टाइप के फ्लो को क्या कहते हैं? लैमिनर फ्लो कहते हैं. ठीक है. ओके. तो स्टूडेंट, suppose there is a liquid and that liquid is sliding on the horizontal surface. ठीक है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज आपके पास एक ग्लास में पानी है. ठीक है. आप क्या करो, उस ग्लास में जो पानी है उसको आप फ्लोर के ऊपर हल्के से आप उसको गिरा दो. ठीक है. आपको फ्लोर के ऊपर ऐसे फेंकना नहीं है, बट आप उसको हल्के से उस पानी को ग्लास में से पूरा के पूरा पानी उस फ्लोर के ऊपर आप गिरा दो. ठीक है. तो क्या होगा? द वाटर विल स्प्रेड ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस. वो जो पानी है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा? स्प्रेड होगा. वी विल से दैट द वाटर इज फ्लोइंग ऑन दैट हॉरिजॉन्टल सरफेस. नाउ स्टूडेंट, when that water is flowing on the horizontal surface, its flow is in the form of the different layers. मतलब कि वो जो पानी का जो फ्लो होता है उस फ्लो के अंदर वाटर के डिफरेंट लेयर्स होते हैं. सी, दिस इज आई एम टॉकिंग एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल. मतलब हमको नहीं दिखाई देगा. अगर हम फ्लोर के ऊपर पानी को गिरा देंगे तो फ्लोर के ऊपर पानी फ्लो होगा, बराबर. बट क्या हमें वो लेयर्स दिखाई देंगे? नहीं, हमें नहीं दिखाई देंगे. सो जो मैं आपके साथ सिचुएशन डिस्कस कर रहा हूं, दैट सिचुएशन इज एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल. उसको हम ऐसे आंख से नहीं देख सकते हैं. समझ में आया आपको? ओके. सो what is laminar flow? I have written here, when the liquid is flowing on the horizontal surface, its flow is in the form of different layers sliding over each other. This type of flow is known as the laminar flow. Student, in the laminar flow, the different layers exert a force of friction, or you can say there will be an internal force of friction between the different layers. There will be internal force of friction between different layers.
which opposes relative motion, which opposes relative motion of layers. ठीक है, this force is called viscous force and property is called विस्कोसिटी. ठीक है, प्रॉपर्टी को कहते हैं विस्कोसिटी और फोर्स को कहते हैं विस्कस फोर्स. तो स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको समझाया कि when the liquid is flowing on the horizontal surface, the flow of that liquid is in the form of the different layers. उस फ्लो के अंदर लिक्विड के अलग अलग लेयर्स होते हैं, हमको लेयर्स दिखाई नहीं देते हैं. तो इस टाइप के फ्लो को क्या कहते हैं? इस टाइप के फ्लो को कहते हैं लैमिनर फ्लो. लैमिनर का मतलब ही होता है लेयर्स. तो लिक्विड का जो फ्लो होता है that is in the form of the layers, that is in the form of lamina. So that's why it is known as the laminar flow. तो laminar flow में क्या होता है? In the laminar flow there are different layers which are sliding over each other, and I add one term here. There are different layers which are sliding over each other without getting mixed up. मतलब एक लेयर है लिक्विड का, उसके ऊपर लिक्विड का दूसरा लेयर है, उसके ऊपर लिक्विड का थर्ड लेयर है, फोर्थ लेयर है. देयर आर नंबर ऑफ सच लेयर्स विच आर स्लाइडिंग ओवर ईच अदर. तो स्टूडेंट एक बात समझो कि एक लेयर है और उस लेयर के ऊपर लिक्विड का दूसरा लेयर है, तो दे आर स्लाइडिंग ओवर ईच अदर, दे आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, दे आर स्लाइडिंग ओवर ईच अदर. So because of that reason, between the different layers in contact, there will be internal force of friction. तो वो जो force of friction होता है, उस force of friction को कहते हैं viscous force, and that property is known as viscosity. देखो ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे अगर आप ग्राउंड के ऊपर चल रहे हो तो आपके जो फुटवेयर्स है, ठीक है, आपके फुटवेयर्स और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन होगा, राइट? सिमिलरली इन द लिक्विड आल्सो व्हेन द डिफरेंट लेयर्स आर स्लाइडिंग ओवर ईच अदर, देन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स, एक्चुअली बिटवीन द एडजेसेंट लेयर्स देयर इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एंड दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज द विस्कस फोर्स एंड द प्रॉपर्टी इज नोन एज द विस्कोसिटी. इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, तो देखो आप लोगों ने एक ऑब्जर्वेशन किया होगा, ठीक है, कभी न कभी आपने ऐसा देखा होगा कि सपोज आपके पास अगर ग्लास है, उसमें पानी है, अगर आप उस पानी को फ्लोर के ऊपर गिरा देते हो, देन द वाटर फ्लोज रैपिडली ऑन दैट सरफेस. जो वाटर है वो सरफेस के ऊपर रैपिडली फ्लो करेगा, एकदम से क्या बोलते हैं, स्पीड में स्प्रेड हो जाएगा. बट इंस्टेड ऑफ वाटर इफ यू हैव सम ऑयल, ठीक है, सपोज आपके पास है कैस्टर ऑयल. कौन सा ऑयल? कैस्टर ऑयल है, ठीक है. एक थोड़ा सा येलो कलर का एक ऑयल आता है. इट इज नॉट अ कुकिंग ऑयल, खाना बनाने के काम में वो ऑयल नहीं आता है. इट हैज अ डिफरेंट यूजेस, ठीक है. सो यू कैन सी इन योर हाउस इफ इट इज देयर. तो वो जो ऑयल होता है, if you make that oil fall on the floor, then that oil will spread on the surface very slowly. It will not spread on the surface as fast as the water is spreading on the surface. बात आई समझ में आपको? ठीक है. अगर आपके पास वो ऑयल के जगह पर सपोज आपके पास हनी है, शहद, हनी, and if you spread that honey on the horizontal surface,
then the honey will spread on the horizontal surface very slowly as compared to that castor oil. समझ में आया? And suppose you have tar, TAR, tar. tar मतलब क्या स्टूडेंट? जिसको कहते हैं डामर, ठीक है? तो जो कंस्ट्रक्शन के अंदर, रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर वो ब्लैक कलर का लिक्विड यूज होता है, बराबर, विच इज स्प्रेडेड ऑन द रोड, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टार. तो वो जो टार होता है दैट स्प्रेड ऑन द सरफेस इवन स्लोली दैन द हनी. सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस द प्रॉपर्टी नोन एज द विस्कोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल. समझ में आया? तो मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता देता हूं कि विस्कोसिटी इज रिलेटेड टू द स्टिकीनेस. विस्कोसिटी इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू स्टिकीनेस. स्टिकीनेस मतलब कि जो लिक्विड है वो कितना चिपचिपाता है. अगर आप वाटर को अगर अपने फिंगर के ऊपर रखोगे तो यू विल नॉट फील एनी स्टिकीनेस. आपको वाटर के अंदर कोई भी चिकनाहट नहीं दिखेगी, राइट? बट अगर वाटर के प्लेस पर अगर आप ऑयल लेते हो, ठीक है, जो कुकिंग ऑयल है फॉर एन एग्जांपल, अगर आप कुकिंग ऑयल को अपने फिंगर के ऊपर रखोगे तो यू विल फील सम स्टिकीनेस. बट इंस्टेड ऑफ दैट ऑयल अगर आप हनी लेते हो तो फिर क्या होगा? यू विल फील मोर स्टिकीनेस, मतलब वो ज्यादा चिपकता है. इट इज मोर विस्कस. इट इज मोर विस्कस. एंड सपोज इफ यू टेक दैट टार जो रोड बनाने में यूज होता है एंड इफ यू पुट इट ऑन योर फिंगर्स तो फिर वो तो कुछ ज्यादा ही चिपकेगा. तो आपको समझ में आ रहा है कि द मटीरियल मतलब कि द फ्लूइड विच इज मोर स्टिकी, जो ज्यादा चिपचिपाता है, इट हैज अ मोर विस्कस फोर्स. उसमें विस्कस फोर्स ज्यादा होता है. और यू कैन से दैट इट्स विस्कोसिटी इज मोर. इज इट क्लियर टू यू? ठीक है स्टूडेंट, बहुत सारी बातें मैंने एक्स्ट्रा बोली है जो कि आपको बुक में दिखाई नहीं देगी, ठीक है? ओके, नाउ हियर वी आर डिस्कसिंग वन एक्टिविटी. वी हैव अ हॉरिजॉन्टल ग्लास प्लेट. तो आपको ये जो दिख रही है, ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है स्टूडेंट, ये रेक्टेंगल एक ग्लास प्लेट है. क्या मतलब? इट इज ऐसा रेक्टेंगल नहीं है, इट इज अ ग्लास प्लेट. जस्ट अ मिनट, आई जस्ट शो यू. जैसे ये मेरा मोबाइल फोन है, ठीक है, रेक्टेंगल मोबाइल फोन है. सो जस्ट लाइक दैट देयर इज ए ग्लास प्लेट. उसको ऐसे रखा हुआ है जैसे मैंने अभी मोबाइल फोन को पकड़ा है. देयर इज सम हॉरिजॉन्टल ग्लास प्लेट. Is that clear? Now on that horizontal glass plate, suppose there is a liquid. एक liquid है. Let us say there is a water. So on the horizontal glass plate there is a water, and on that water there is another glass plate which you can see here. So this is the glass plate and this lower glass plate is fixed. मतलब वो उसको हमने वहां पर फिक्स कर दिया है. इट इज नॉट मूवेबल, ठीक है? सो वी हैव अ फिक्स ग्लास प्लेट. यहां पर मैं लिख देता हूं, दिस इज, ऐसा लिखा हुआ नहीं है बुक के अंदर बट आपको समझ में आए इसके लिए. दिस इज द फिक्स ग्लास प्लेट. ऑन दैट फिक्स ग्लास प्लेट देयर इज अ वाटर, ठीक है? तो यहां से लेके ये पूरा ये वाटर है. आई हैव एनलार्ज्ड द फिगर आपको टॉपिक समझाने के लिए. तो ये पूरा जो रीजन है देयर इज अ वाटर एंड अबव दैट वाटर देयर इज अनदर ग्लास प्लेट एंड दिस ग्लास प्लेट इज नॉट फिक्स. उसको फिक्स करके नहीं रखा है, ठीक है? नाउ वी अप्लाई सम फोर्स ऑन दिस अपर ग्लास प्लेट. सो द अपर ग्लास प्लेट विल मूव विथ अ सर्टेन वेलोसिटी, बराबर? And if you want to make the upper glass plate with the constant velocity, then we have to apply certain force on that glass plate. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप ये upper glass plate के ऊपर एक बार certain force apply करोगे तो upper glass plate will move with the constant speed. No student. If you apply the force of the upper glass plate, then the upper glass plate moves, but after traveling a certain distance, the upper glass plate comes to rest. If you want to make the upper glass plate moves with the constant speed, then you have to apply certain force. आपको थोड़ा force apply करना पड़ेगा, ठीक है?
तो हियर बिटवीन द टू ग्लास प्लेट विच फ्लूइड आई हैव टेकन वाटर, ठीक है। नाउ इंस्टेड ऑफ वाटर सपोज देयर इज अ ऑयल, यहां पर ऑयल है, this is the lower glass plate which is a fixed, this is the upper glass plate and between the two glass plate there is a oil, यहाँ पर oil है, ठीक है। So in that situation if you want to make the upper glass plate move with the constant speed you have to apply certain more force than the force you applied when there was a water। बात समझ में आ गई? नहीं आई है समझ में तो फिर से सुनो, ठीक है। देखो ये दो ग्लास प्लेट के बीच में जब वाटर है एंड इफ यू वांट टू मेक द अपर ग्लास प्लेट मूव विद द कांस्टेंट स्पीड, अगर आपको अपर ग्लास प्लेट को कांस्टेंट स्पीड से मूव करवाना है तो फिर आपको थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। बट इंस्टेड ऑफ वाटर इफ देयर इज ए ऑयल, सपोज यहां पर कोई ऑयल है, कौन सा वाला ऑयल? वैसे तो कुकिंग ऑयल भी चलेगा बट सपोज देयर इज ए कैस्टर ऑयल, क्योंकि जो कैस्टर ऑयल होता है ना स्टूडेंट, दैट कैस्टर ऑयल इज मोर स्टिकी, बराबर। तो इफ यू fill the castor oil here then you have to apply some more force to make the upper glass plate move with the constant velocity. Instead of that, suppose there is honey, then you require still more force, and instead of the honey if you are having the tar, अगर यहाँ पर ये दो प्लेट के बीच में tar है then you require to apply a very large force to make the upper glass plate moves with the same constant velocity। जो वेलोसिटी वाटर के केस में थी, जो वेलोसिटी कैस्टर ऑयल के केस में थी, जो वेलोसिटी हनी के केस में थी, जो वेलोसिटी ये तीन के केस में थी, उससे ज्यादा मतलब सॉरी उतनी ही वेलोसिटी से अपर प्लेट को मूव करवाने के लिए यू विल हैव टू अप्लाई सम मोर फोर्स। इज दैट क्लियर? सो बिहाइंड दिस what is the result? The result is the viscous force, बराबर समझ में आया? and the property is known as the viscosity। is that clear? okay, now student in the beginning of the topic I said that when the liquid is flowing on the horizontal surface then the flow of the liquid is in the form of the different layers, ठीक है, and that type of flow is known as the laminar flow। now student here understand one thing, this is the fixed plate, this is the movable plate, and between these two plates there is a fluid। now the layer of the fluid which is in contact with the fixed plate will have a zero velocity with respect to the fixed plate। फिर से सुनो, लिक्विड का देखो ये फिक्स ग्लास प्लेट है, ये अपर ग्लास प्लेट है और इसके बीच में ये जो पूरा है ये पूरा लिक्विड है, ठीक है। तो लिक्विड का जो लेयर इस फिक्स ग्लास प्लेट के कांटेक्ट में है, ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज द लेयर ऑफ द लिक्विड। तो लिक्विड का जो लेयर ये फिक्स ग्लास प्लेट के कांटेक्ट में है, व्हाट विल बी इट्स स्टेट ऑफ मोशन? इट विल बी एट रेस्ट, इट विल नॉट बी मूविंग। समझ में आया? ओके, नाउ द लेयर ऑफ द लिक्विड विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द अपर ग्लास प्लेट, the layer of the liquid which is in contact with the upper glass plate, it moves with the same velocity as the velocity of the upper glass plate। मतलब कि upper glass plate अगर v velocity से मूव कर रही है तो लिक्विड का जो लेयर इस upper glass plate के कांटेक्ट में है it will also move with the same velocity। is that clear? but as you go down then the velocity of the different layer gradually decreases। समझ में आ गई ये बात? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी बिटवीन द टू ग्लास प्लेट देयर इज अ लिक्विड, ये पूरा लिक्विड है, ठीक है। द फ्लो ऑफ द लिक्विड इज इन द फॉर्म ऑफ द डिफरेंट लेयर्स। व्हाट आई एम टेलिंग यू, द लेयर ऑफ द लिक्विड व्हिच इज इन कांटेक्ट विद द अपर ग्लास प्लेट मूव्स विद द सेम वेलोसिटी एज द वेलोसिटी ऑफ द अपर ग्लास प्लेट। मतलब अपर ग्लास प्लेट जो वेलोसिटी से मूव करती है, अपर ग्लास प्लेट अगर v वेलोसिटी से मूव करती है तो फिर लिक्विड का जो लेयर उसके कांटेक्ट में है इट विल मूव विद द सेम वेलोसिटी। बट एज यू गो डाउन द वेलोसिटी ऑफ द
different layers decreases. समझ में आया? तो स्टूडेंट here you can see that यहाँ पर एक long arrow है and here there is another arrow which is comparatively shorter. यहाँ पर एक और arrow है जो ऊपर वाले arrow से भी थोड़ा short है. यहाँ पर एक और arrow है. So in short, if you go down, then the length of this arrow constantly decreases. So the length of this arrow represents the velocity. The length of the arrow represents the velocity. समझ में आएगा आपको बात? तो यहाँ पर अगर मैं एक एरो ड्रॉ करूंगा तो वो एरो की वेलोसिटी होगी v, बराबर? इसकी वेलोसिटी v से कम होगी, इसकी वेलोसिटी और भी कम होगी. तो as you go down, वेलोसिटी gradually decreases. ठीक है? तो this type of flow is known as the laminar flow. समझ में आया? देखो ये होता है, हमें नहीं दिखाई देता है. समझ में आया आपको? ओके. नाउ इफ यू कंसीडर एनी लेयर ऑफ द फ्लूइड, अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना. इफ यू कंसीडर एनी लेयर ऑफ द फ्लूइड, सपोज आप इस लेयर को कंसीडर करते हो, आई कॉल इट एज लेयर 1. सो देयर आर टू लेयर्स. वन लेयर इज अबव इट, आई कॉल इट एज लेयर 2. सेकंड लेयर इज बिलो इट, आई कॉल इट एज लेयर 3. So layer 2 and layer 3, both layers which are in contact with the layer 1 exert force on the layer 1. ठीक है? Layer 2 exert force on the layer 1 in the forward direction. Layer 3, whose velocity is less than the layer 1, exert force in the backward direction. आपको बात समझ में आ रही है? तो this layer 1 experience two forces. The layer above it exert a forward force. The layer below it exert a backward force. Backward force क्यों exert करेगा? क्योंकि ये जो नीचे वाला लेयर है ना, उसकी वेलोसिटी ये लेयर 1 के वेलोसिटी से लेस है. सुनना बात को ध्यान से. बुक में एक्सप्लेनेशन कभी भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं होता है. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर कि बुक में जो नहीं है वो भी स्टूडेंट को डिटेल में समझाए, वो बातें भी स्टूडेंट को डिटेल में वो समझाए. ठीक है? तो देखो ये जो लेयर 2 है, इट्स वेलोसिटी इज मोर देन द वेलोसिटी ऑफ द लेयर 1. तो लेयर 2 will try to drag the layer 1 in the forward direction. लेयर 2 लेयर 1 को अपने साथ आगे ले जाने की कोशिश करेगा. लेयर 3 is having the less velocity than the velocity of the layer 1. Layer 3 is having the less velocity than the velocity of the layer 1. तो layer 3 क्या करेगा? Layer 3 will try to make the layer move with own velocity. मतलब layer 3 layer 1 को अपनी वेलोसिटी से मूव कराने की कोशिश करेगा. आई बात समझ में? ठीक है? तो लेयर 3 की वेलोसिटी तो लेयर 1 के वेलोसिटी से लेस है. तो इन शॉर्ट लेयर 3 लेयर 1 को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुल करता है एक तरह से, बराबर? तो लेयर 3 विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द लेयर 1 इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. यहां पर मैंने बैकवर्ड एरो किया है, यहां पर मैंने फॉरवर्ड एरो किया है. ठीक है? सो ऑन एनी लेयर देयर इज internal force of friction, and this internal force of friction is known as the viscous force, and this property is known as the viscosity. आई बात समझ में? ठीक है. अच्छा, अब स्टूडेंट यहाँ पर हमने जो सिचुएशन इमेजिन की है वो सिचुएशन कैसी है कि देयर इज अ फिक्स्ड ग्लास प्लेट, above that glass plate there is a liquid, and above that liquid there is a movable glass plate. ठीक है? And we have considered the flow of liquid in that situation. Now suppose if we have a cylindrical pipe, usually जो पाइप होती है जिसमें से लिक्विड फ्लो होता है वो सिलिंड्रिकल ही होती है. आपके घर में पानी की जितनी भी पाइप्स होगी वो सब सिलिंड्रिकल ही होगी. मैंने सिलिंड्रिकल के सिवाय दूसरे शेप की पाइप मैंने तो नहीं लिखी है, बराबर? तो देखो आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा फिगर ड्रॉ करके समझाता हूँ. ठीक है? तो दिस इज दैट सिलिंड्रिकल पाइप. ये वो सिलिंड्रिकल पाइप है. ठीक है? आई हैव शोन दिस स्मॉल पोर्शन and this is the axis of that cylindrical pipe. Through this cylindrical pipe the fluid is flowing. Through the cylindrical pipe the fluid is flowing. Now here also
द फ्लो ऑफ द लिक्विड, मतलब कि जो पाइप है, इस पाइप में से सपोज पानी फ्लो कर रहा है, बराबर, तो द फ्लो ऑफ दैट वाटर also contains the different layers. Are you getting what I'm telling? The flow of that water also contains the different layers. But here what is the dissimilarity? अलग क्या बात है यहाँ पर? यहाँ पर अलग बात ये है कि the shape of the layer is cylindrical. बराबर, तो मैं 2-3 layers just आपको शो करता हूँ. तो देखो, this is one layer. ये एक लेयर है, दिस इज द सिलिंड्रिकल लेयर. ये दूसरा वाला लेयर है, दिस इज अनदर सिलिंड्रिकल लेयर. ठीक है, एंड आई ड्रॉ द लास्ट लेयर ऐसे, तो दिस इज द थर्ड लेयर. इज दैट क्लियर? सो देयर आर डिफरेंट लेयर्स. ठीक है, दिस इज वन लेयर, this is second layer and this is the third layer. Are you getting my point? अब स्टूडेंट एक बात ध्यान से समझो. The layer which is in contact with the wall of the cylindrical pipe, ये जो है ना cylindrical pipe की wall है. The layer which is in contact with the wall of the cylindrical pipe will have zero velocity. इसकी velocity कैसी होगी? जीरो होगी. जैसे यहां पर जो लेयर फिक्स स्टेट के कांटेक्ट में है उसकी वेलोसिटी जीरो है, वैसे ही जो लेयर इस सिलिंड्रिकल पाइप के कांटेक्ट में है उसकी वेलोसिटी जीरो. एंड एज यू गो डाउन देन द वेलोसिटी इंक्रीजेस. मतलब लेयर 1 विल हैव मोर वेलोसिटी, मींस इट विल हैव सम वेलोसिटी, क्योंकि द लेयर व्हिच इज इन कांटेक्ट विद द वॉल इज हैविंग द जीरो वेलोसिटी. सो द लेयर 1 इज हैविंग अ सर्टेन वेलोसिटी. Layer 2 is having more velocity than the layer 1. Layer 3, which is closest to the axis of the cylindrical pipe, will have a maximum velocity. समझ में आई आपको बात? तो यहाँ पर भी the layer which is in contact with the wall of the cylindrical pipe will have a zero velocity, and as you go down towards the axis of the pipe, then the velocity gradually increases. That situation is shown here in this figure. इस फिगर का इस फिगर के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है. तो देखो, ये जो है आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पर मैं ये जो रेक्टेंगल आपको जो शो कर रहा हूं, ये क्या है? दिस इज द लेयर ऑफ द लिक्विड विच इज क्लोज टू द एक्सिस, मतलब इट इज लेयर 3. ठीक है, फिर यहां पर एक लेयर होगा विच इज नॉट मूविंग एट ऑल, तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी. फिर जैसे जैसे नीचे जाते हैं, ये लेयर 1 लाइक, ठीक है, आप इसको यहाँ पर लेयर 2, यहाँ पर लेयर 3, फिर और भी लेयर्स होंगे, एंड द लेयर विच इज एट द एक्सिस विल हैव अ मैक्सिमम वेलोसिटी. सो हियर यू कैन सी दैट कि यहाँ पर एक सबसे लॉन्गेस्ट एरो है, दैट लॉन्गेस्ट एरो इज रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द लेयर विच इज क्लोज टू द एक्सिस. ऊपर जाओगे वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होगी, नीचे जाओगे वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होगी. समझ में आई आपको ये बात? ठीक है, ओके. सो स्टूडेंट, so far I have explained you that in the fluid there is a laminar flow. Any layer experience the internal force of friction due to the layer in contact with it. मैंने आपको ये भी समझाया कि जो लेयर फिक्स्ड सरफेस के कांटेक्ट में है, इट विल हैव अ जीरो वेलोसिटी. बराबर. तो अब आप इस फिगर को ध्यान से देखो. इन दिस फिगर कैन यू सी ए बी सी डी? तो आपको फिगर में चलो मैं इतना पोर्शन में थोड़ा सा रब कर देता हूं. इन दिस फिगर यू कैन सी ए बी सी डी. आपको फिगर में क्या दिख रहा है? ये ए बी सी डी दिख रहा है. ठीक है, this is A, this is B, this is C, and this is D. Now this is what? This is the element of the fluid. जो fluid है, which is flowing between the two glass plate, उसका एक part है. बराबर. This layer is in contact with the lower surface, so it is stationary, and this layer is having the maximum velocity. So this layer is going forward, and this layer is remaining stationary,
and as you go down velocity decreases, or you can say as you go up velocity increases. So the shape of the element after a delta t time interval will be like this. The shape of the element after delta t time will be like this. कैसा shape? A E F D. आई बात समझ में? So A B C D is the shape of the sorry, A B C D is the shape of the element at a given time, suppose t time, and A E F D is the shape of the element after delta t time. समझ में आया? And in this time, suppose this element is displaced by the amount delta x, और डेल्टा एक्स कितना होगा? डेल्टा एक्स डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम इंटरवल. आई बात समझ में? तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू v इनटू डेल्टा t. सो स्टूडेंट, हियर द शेप ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट हैज चेंज्ड. आई रिपीट दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. हियर द शेप ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट हैज चेंज्ड. तो जब भी शेप चेंज की बात आती है तो फिर वहां पर क्या होता है? Remember the previous chapter number 9. Student, whenever there is a change in shape, there is a shearing stress, there is a shearing strain. समझ में आया? तो यहाँ पर भी shearing stress होगा, यहाँ पर भी shearing strain होगा. ओके, हमने previous chapter में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि stress is directly proportional to strain. That is applicable in the case of the solid. Solid में stress is proportional to strain, but in the case of a liquid, the stress is proportional to strain rate. Stress किसको proportional है? Stress is proportional to strain rate. इसको proportional है. Stress is proportional to strain rate. अच्छा, स्ट्रेन क्या होता है वो तो आपको पता है. स्ट्रेन मतलब क्या स्टूडेंट? डेल्टा एक्स अपॉन एल. इसको हम कहेंगे स्ट्रेन. बराबर? तो डेल्टा एक्स मतलब क्या है? डेल्टा एक्स इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेयर. मतलब ये जो लेयर है, कौन सा? ए बी सी डी लेयर, उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डेल्टा एक्स जितना हुआ है. बराबर? डिवाइड बाय एल. एल मतलब कि हाइट ऑफ दैट लेयर. तो यहाँ पर मैंने स्मॉल एल लिखा, वहां पर मैंने कैपिटल एल लिख दिया. कोई बात नहीं, मैं नोटेशन बदल देता हूं. तो दिस इज द स्ट्रेन. बट जब हम रेट बोलते हैं तो वी हैव टू डिवाइड इट बाय डेल्टा. सो दिस इज नोन एज द स्ट्रेन रेट. इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्ट्रेन रेट. तो डेल्टा एक्स अपॉन एल, दैट इज द स्ट्रेन, एंड डिवाइड बाय डेल्टा टी. तो दिस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एल डेल्टा. Student, very important, interesting topic I am going to discuss with you. The name of the topic is Stokes law. Stoke साइंटिस्ट का नाम. ठीक है? So what is the Stokes law? Let us understand. Student, when the body is falling in the viscous medium, it drags the medium along with it, and because of that reason, the laminar flow is produced in the medium. Between the different layers of the medium, the resistive force is produced, and this resistive force also act on that body. ठीक है? मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूं कि मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया है. देखो, सपोज दैट इज अ विस्कस मीडियम. विस्कस आपको पता चल गया है कि जो स्टिकी होता है, मतलब एक्चुअली कोई भी लिक्विड होता है ना, उसको आप विस्कस लिक्विड बोल सकते हैं, बट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लिक्विड. इट्स विस्कोसिटी मे बी लेस, लाइक वाटर की विस्कोसिटी लेस होती है. ठीक है? और जो ऑयल होता है, फॉर एन एग्जांपल कैस्टर ऑयल, येलो कलर का जो ऑयल आता है,
उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो हायर होती है। ठीक है, तो देखो सपोज आई हैव ट्यूब, एक बड़ी ट्यूब है एंड इन दैट ट्यूब देयर इज अ विस्कस फ्लूइड, इसके अंदर विस्कस फ्लूइड है लाइक दैट, वो येलो कलर का कैस्टर ऑयल है। इन दिस फ्लूइड सपोज अ स्फेरिकल बॉडी, एक स्फेरिकल बॉडी ऐसी गिर रही है, ठीक है। सो व्हेन दिस बॉडी विल फॉल इन दैट विस्कस फ्लूइड, then what happens, the laminar flow will produce in the fluid. The layer of the liquid which is in contact with the body will move with the same velocity as the velocity of the body. बात को ध्यान से सुनो, शांति से सुनो, मैं भी शांति से समझाऊंगा, आपको समझ में आ ही जाएगा। एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है, उस सिलिंड्रिकल ट्यूब के अंदर एक लिक्विड है, कौन सा लिक्विड है, फॉर एग्जांपल उसके अंदर कैस्टर ऑयल है, ठीक है। नाउ देयर इज अ स्फेरिकल बॉडी, एक स्फीयर है, एक स्टील का स्फीयर। देखो आप ये प्रैक्टिकल करने वाले हो फिजिक्स की लैब में, ठीक है। तो ये एक स्टील का स्फीयर है। दिस स्टील स्फीयर इज मेड टू फॉल, इट इज फॉलिंग, इट इज मूविंग इन द लिक्विड। So when this steel sphere moves in the liquid, the layer of the liquid in contact with this steel sphere, in contact with this body, will move with the same velocity as the velocity of the body. तो जो लेयर इसके कांटेक्ट में है, लिक्विड का जो लेयर इस स्टील स्फीयर के कांटेक्ट में है, वो मूव करेगा, it will drag along with this body. It moves with the same velocity as the velocity of the body. But the distant layer which is in contact with the wall of this cylinder, it will be stationary. तो यहाँ पर जो लेयर होगा which is in contact with the wall, उसकी velocity 0 होगी। But अगर ये बॉडी मूव कर रही है तो जो लेयर इस बॉडी के कांटेक्ट में है, it will have a certain velocity. So this layer of the liquid will have a certain velocity. This layer which is in contact with the wall of the tube will have a zero velocity. So there will be a laminar flow. यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर laminar flow होगा, ऐसे 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 डिफरेंट लेयर के फॉर्म में ऐसे फ्लो होगा। समझ में आया? There will be a laminar flow in the liquid. So between the different layers of the liquid, ये जो liquid है उसके different layers में, between the different layers of the liquid there will be internal force of friction which we call as the viscous force, and this viscous force also act on this body. ये जो बॉडी है उस बॉडी के ऊपर भी वो viscous force act करेगा। समझ में आया? ठीक है। Now student here मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल इज फॉलिंग रेन ड्रॉप, फॉलिंग रेन ड्रॉप, और दूसरा भी एक एग्जांपल लिखा है बुक के अंदर कि ऑसिलेटिंग पेंडुलम। बट ऑसिलेटिंग पेंडुलम ठीक है, चलो मैं आपको पहले फॉलिंग रेन ड्रॉप एक्सप्लेन करता हूँ। देखो व्हेन द रेन ड्रॉप इज फॉलिंग, तो रेन ड्रॉप एक स्फेरिकल बॉडी होती है एंड इट इज फॉलिंग थ्रू द एयर, जस्ट लाइक यहाँ पर स्टील का स्फीयर, ये स्टील का स्फीयर है, इट इज फॉलिंग थ्रू द कैस्टर ऑयल। There is a rain drop which is falling through the air. Air यहाँ पर कैस्टर ऑयल की जगह एयर है और स्टील स्फीयर की जगह रेन का ड्रॉप है, ठीक है। तो इन दैट सिचुएशन आल्सो देयर विल बी अ लैमिनर फ्लो and that rain drop will experience the viscous force. Similarly, when the pendulum is oscillating in the air, that oscillating pendulum also experiences the viscous force due to the air. समझ में आया? ठीक है। Now, there was a scientist Stokes. Scientist Stokes ने क्या फाइंड किया कि viscous force, Stokes found that उन्होंने क्या ढूंढ निकाला कि विस्कस फोर्स डिपेंड ऑन, विस्कस फोर्स डिपेंड ऑन, किसके ऊपर विस्कस फोर्स डिपेंड करता है? इट डिपेंड ऑन नंबर वन, इट डिपेंड ऑन नंबर वन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
बुक में क्या वर्ड यूज किया है, हाँ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, वही जो मैंने बोला विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब ईटा के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड, इट डिपेंड्स ऑन द एरिया। किसका एरिया? द एरिया विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द बॉडी एंड द लिक्विड, मतलब अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ दिस स्फेरिकल बॉडी, बराबर। एंड नंबर 3, इट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मूविंग थ्रू द फ्लूइड मीडियम, रिपीट, viscous force acting on the body moving through the fluid medium, moving through the viscous medium, depends on 3 factors: viscosity of the liquid, area in contact, and number 3 depends on the velocity। समझ में आया? तो इसके ऊपर से उन्होंने ऐसा लिखा कि F is proportional to eta a v, इन तीन पर डिपेंड करता है। तो इसको प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया, बराबर। और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया हमको 6 पाई ईटा ए बी। आई जस्ट चेक दिस, यस 6, बुक में शायद स्मॉल ए लिखा है, बट एरिया को आप कोई भी नोटेशन से डिनोट कर सकते हो। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर विस्कस फोर्स। ये किसका फॉर्मूला है? विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मूविंग थ्रू द फ्लूइड मीडियम। लिख देता हूं, viscous force acting on body moving through fluid, बराबर। ओके स्टूडेंट, viscous force is an example of velocity dependent force. Note down this point. विस्कस फोर्स किसका एग्जांपल है? वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स का एग्जांपल है। पॉइंट इज व्हाट कि एज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, द विस्कस फोर्स आल्सो इंक्रीजेस। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि विस्कस फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इफ द बॉडी इज फॉलिंग डाउनवर्ड, द विस्कस फोर्स इज एक्टिंग ऑलवेज अपवर्ड। समझ में आई आपको ये बात? तो स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन है उसको कहते हैं स्टोक्स लॉ, बराबर। स्टोक्स लॉ का कोई स्टेटमेंट नहीं है। इक्वेशन 1 इज कॉल्ड स्टोक्स लॉ। क्लियर? ठीक है। अब मैं आपके साथ आगे जो सिचुएशन डिस्कस कर रहा हूं वो आपको बहुत ही ध्यान से समझनी पड़ेगी। ओके, तो देखो स्टूडेंट, देयर इज अ स्फेरिकल बॉडी, एक स्फेरिकल बॉडी है, एंड दिस स्फेरिकल बॉडी इज इमर्स्ड इनटू द लिक्विड। द स्फेरिकल बॉडी इज इमर्स्ड इनटू द लिक्विड, और 2 फोर्सेस विल एक्ट ऑन द बॉडी। इस बॉडी के ऊपर 2 फोर्सेस लगेंगे। नंबर 1, एक तो है वेट ऑफ द बॉडी, और वेट ऑफ द बॉडी होता है mg, बराबर। और वेट की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है, तो इसके लिए मैं डाउनवर्ड एरो कर देता हूं। Second force acting on the body is known as the buoyant force. Buoyant force भी कहते हैं उसको, डिपेंड्स कि कौन कैसे बुलाता है। मैं तो उसको buoyant force बुलाता हूं। तो buoyant force जो होता है ना स्टूडेंट, उसको मैं यहाँ पर डिनोट करता हूं F1 से। So how much is the magnitude of buoyant force? समझो, buoyant force is equal to the weight of the displaced liquid। क्या कहा मैंने? buoyant force is equal to weight of the displaced liquid। देखो एक बात समझो कि ये जो स्फेरिकल बॉडी है उसको हमने लिक्विड के अंदर मूव किया है, तो क्या वो लिक्विड उस बॉडी के अंदर घुस जाएगा? नहीं घुसेगा ना, बॉडी तो क्लोज बॉडी है, इट इज अ स्फेरिकल बॉडी। तो इट विल डिस्प्लेस सम लिक्विड, इट विल डिस्प्लेस सम लिक्विड। समझ आया? जैसे कि आप अगर स्विमिंग पूल में उतरोगे तो फिर क्या वो पानी आपके बॉडी में थोड़ी घुस जाएगा? नहीं घुसेगा ना, यू विल डिस्प्लेस द वाटर। सिमिलरली दिस बॉडी आल्सो डिस्प्लेस द लिक्विड। तो ऑन दिस बॉडी दैट विल बी अ buoyant force, एंड दैट buoyant force F1 वो कितना होता है? वो होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड।
वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड जितना होता है। आई बात समझ में? तो उसको मैं डिनोट करता हूं m0g से। तो m0 क्या है? m0 इज द मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। m0 क्या है? m0 इज द मास ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड। स्टूडेंट रिमेंबर कि बुयंट फोर्स हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही होता है। मैंने आपको याद है एक आगे के टॉपिक में एक एक्सप्लेनेशन दिया था आपको कि अगर एक प्लास्टिक का बॉल है, अगर आप वो प्लास्टिक के बॉल को बकेट के अंदर डालते हो, पानी भरी हुई बकेट के अंदर, एंड इफ यू रिलीज तो बॉल अपने आप ऊपर आ जाता है। क्यों? क्योंकि बॉल के ऊपर एक अपवर्ड थ्रस्ट लगता है, अपवर्ड फोर्स लगता है, दैट इज नोन एज द बुयंट फोर्स। आई बात समझ में आपको? ठीक है। ओके, नाउ एक बात समझो कि अभी तक ये बॉडी स्टेशनरी थी, सो ओनली टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी। बट सपोज ये बॉडी स्टार्ट फॉलिंग, अगर ये बॉडी नीचे गिरना शुरू कर देती है तो थर्ड फोर्स आल्सो स्टार्ट एक्टिंग, दैट इज द विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स इज द वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। अगर बॉडी स्टेशनरी है, नो विस्कस फोर्स। इफ बॉडी स्टार्ट मूविंग, विस्कस फोर्स स्टार्ट एक्टिंग। तो तीसरा जो फोर्स है वो है विस्कस फोर्स। एंड स्टूडेंट, ये जो विस्कस फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड है 6 पाई ईटा। मैंने वहां पर लिखा है मैंने a बराबर 6 पाई ईटा। एक मैं बुक में नोटेशन देख लेता हूं क्या दिया हुआ है उन लोगों ने नोटेशन। हाँ ठीक है, ए ही लिखा हुआ। अच्छा एक सेकंड, लेट मी सी इन द बुक, क्योंकि ए जो है ना वो मुझे थोड़ा सा जस्ट मिनट 6 पाई ईटा आता है, ईटा ए, यस ए। हाँ तो स्टूडेंट मेरी मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट। कि ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है एरिया, एक बुक में क्या लिखा हुआ है? रेडियस। यस सॉरी, दिस इज नॉट एरिया, दिस इज रेडियस। वैसे एरिया लिखना गलत भी नहीं है, क्योंकि एरिया जो होता है वो रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, बट फिर भी रेडियस ही लिखना चाहिए। सो आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक। ठीक है, तो यहां पर इट विल बी स्मॉल ए, एंड स्मॉल ए इज नॉट द एक्सेलरेशन, इट इज द रेडियस। ठीक है, तो यहां पर ए आएगा। ठीक है, ए क्या है? ए इज द रेडियस। ओके, सो 6 पाई ईटा ई। ठीक है, तो स्टूडेंट हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी? देयर आर टोटल 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। समझ में आया आपको यहाँ पर? तो बॉडी के ऊपर टोटल 3 फोर्सेस लग रहे हैं। अब स्टूडेंट एक बात समझो कि ये जो होता है ना वेट, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। जो बुयंट फोर्स होता है वो भी कांस्टेंट होता है। बट जो विस्कस फोर्स है, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि विस्कस फोर्स इज द वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, वो बॉडी के वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो दिस फोर्स, अच्छा ये कौन से डायरेक्शन में होता है? ऑपोजिट टू मोशन। बॉडी नीचे गिर रही है तो विस्कस फोर्स विल बी अपवर्ड। तो जो विस्कस फोर्स होता है वो कांस्टेंट नहीं है, इट इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, सो समझ में आई बात? नाउ व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ these two forces F1 and F2 becomes equal to W। देखो W नीचे की तरफ है, F1 और F2 अपवर्ड है, तो W is equal to F1 plus F2। तो उस सिचुएशन में what will be the net force on the body? The net force on the body will be 0, क्योंकि W is the weight that is downward, F1 is the buoyant force that is upward, and viscous force is also upward. These two are equal. Oh, sorry, not equal. My mistake. These two are constant, but this is not constant. So सुनना मेरी बात को ध्यान से. When F1 plus F2 becomes equal to weight, when F1 plus F2 becomes equal to weight, then net force on the body becomes 0. Net force on the body becomes 0. और जब नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, एंड बॉडी विल मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, देखो स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन करता हूं। ये जो W होता है, वेट ऑफ द बॉडी, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। जो F1 होता है बुयंट फोर्स, वो भी हमेशा कांस्टेंट होता है। यहां पर हमने बॉडी को लिक्विड
हमने उसको ड्रॉप नहीं किया, छोड़ा नहीं है, तो बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस होंगे, एक तो W, दूसरा वाला F1। और जो W है ना, weight of the body that is more, weight of the body is more than the weird force. If you release the body, body will start falling, body नीचे गिरने लगेगी। When F1 plus F2 becomes equal to W, तो फिर क्या होगा, net force on the body will become zero, acceleration of the body will become zero and the body will fall with the constant velocity. Actually क्या होता है कि initially when you drop the body, the motion of the body is accelerated. ध्यान से सुनना, initially when you drop the body, the motion of the body is accelerated, but after some time when F1 plus F2 becomes equal to W, then the body moves with the constant velocity and that constant velocity is known as terminal velocity. तो मैं आपको थोड़ा सा एक्शन करके बताता हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, सपोज मेरे हाथ में एक स्फीयर है एंड दैट स्फीयर इज इनिशियली स्टेशनरी, ये स्फीयर लिक्विड के अंदर है, ठीक है। तो स्फीयर इनिशियली स्टेशनरी है, दो ही फोर्स लगेंगे, एक W और दूसरा F1। फिर मैंने उसको लिक्विड में छोड़ दिया तो बॉडी नीचे गिरने लगेगी। तो इनिशियली उसके ऊपर फोर्स जीरो नहीं होगा क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी इनिशियली लेस होगी। ड्रॉप करने के बाद वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होती है ना, एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी इंक्रीज फ्रॉम जीरो। सो इनिशियली द बॉडी विल फॉल विद द एक्सेलरेशन, ऐसे बॉडी विल फॉल विद द एक्सेलरेशन विद द इंक्रीजिंग स्पीड, ऐसे। बट जब ये हो जाएगा देन इट मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आई बात समझ में? सो जब आप आपके स्कूल में प्रैक्टिकल करोगे, कौन सा प्रैक्टिकल, स्टोक्स लॉ का प्रैक्टिकल, टू डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यू विल सी दिस। सो वंस अगेन, body is immersed into the liquid. When you drop, initially its motion is accelerated because net force is not zero. ऐसे स्पीड एकदम से बढ़ गई, बट फिर उसके बाद नेट फोर्स जीरो हो जाएगा ड्यू टू दैट रीजन, तो इट विल मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी एंड दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। तो देखो, W है mg, F1 है m0g, F2 है 6 पाई ईटा AV। तो m मतलब मास, मास मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो 4/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम डेंसिटी इनटू g, 4/3 पाई r0 क्यूब, और यहां पर भी r ही लो, ठीक है। एक सेकंड, यहां पर नोटेशन में मैंने रेडियस को स्मॉल ए से डिनोट किया है ना, तो मुझे यहां पर स्मॉल ए ही लेना पड़ेगा। यहां पर आएगा ए, यहां पर आएगा ए, यहां पर आएगा ρ0 g प्लस 6 पाई ईटा AV। समझो बात को, बॉडी का रेडियस ए है तो वॉल्यूम में हम 4/3 पाई r क्यूब लेते हैं ना, पर रेडियस अगर ये हो तो फिर e क्यूब लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो देखो 4/3 पाई a क्यूब रो माइनस ρ0 इंटू जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा AV, ये फॉर्मूला है। एंड इस v को मैं डिनोट करता हूं VT से। VT मतलब टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल मतलब फाइनल। कॉमन कन्वर्सेशन में टर्मिनल का मतलब होता है फाइनल, बराबर, ओके। जैसे कि बस टर्मिनस होता है, तो जहां पर एंड में बस जाके रुक जाती है उसको टर्मिनस बोलते हैं। तो टर्मिनल मतलब फाइनल, जस्ट ऐसे आपको समझना है, पता चला ये, ठीक है। तो वी हैव दिस फॉर्मूला। अब इसमें थोड़ा सा कैंसलेशन करो तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 4 है, ये 6 है, तो दोनों साइड पर 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। तो देखो, दिस विल बी 2/3, एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर रो माइनस ρ0 इंटू जी इज इक्वल टू ईटा इंटू VT। क्लियर? तो ईटा इज इक्वल टू जस्ट अ मिनट, यहां पर 3 बचेगा ना, यहां पर 3 बचेगा,
तो ईटा इज इक्वल टू 2/9 a स्क्वायर रो माइनस रो जीरो इंटू जी। आई थिंक सब कुछ आ गया है। ईटा इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर आ गया सब कुछ। ईटा इज इक्वल टू 2/9 ए स्क्वायर रो माइनस रो जीरो इंटू जी। वीटी रह गया ना, डिवाइड बाय वीटी। तो दिस इज द फॉर्मूला। तो स्टूडेंट देयर आर एक्सपेरिमेंट ऑफ डिटरमाइनिंग दिस ईटा। ईटा डिटरमाइन करने का एक्सपेरिमेंट होता है। उसमें करते क्या है कि 2/9 तो कांस्टेंट है, जी इज आल्सो कांस्टेंट। यूजिंग द माइक्रोमीटर ए की वैल्यू मेजर करनी होती है। रो एंड रो जीरो आर गिवन एंड वीटी यू हैव टू मेजर प्रैक्टिकली। वो ग्लास की ट्यूब के अंदर ऑयल फील्ड होता है, उसके अंदर स्फीयर को ड्रॉप करके वीटी मेजर करना होता है। सो यू कैन डिटरमाइन दिस ईटा। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ डिटरमाइनिंग द ईटा। स्टूडेंट एक दो मिस्टेक हो गई मेरी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। यहाँ पर मैंने एरिया लिख दिया था, वो मेरी मिस्टेक हो गई, बराबर। और शायद नोटेशन में भी मैंने गलती कर दी वहां पर, अदरवाइज एवरीथिंग इज करेक्ट। ठीक है, तो अच्छा है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट एग्जाम्पल 10.10 सिंपल एंड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, बराबर। The terminal velocity of a copper ball of radius 2 mm falling through a tank of oil at 20 degrees centigrade is 6.5 centimeter per second. Compute the viscosity of the oil at 20 degrees centigrade. Density of oil is given, density of copper is given. मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखो, एक कॉपर का स्फीयर है, उसका रेडियस है 2 मिलीमीटर, जिसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ये कॉपर का स्फीयर एक टैंक में फॉल कर रहा है और उस टैंक के अंदर कोई लिक्विड है। क्या क्या लिक्विड है? ऑयल। टैंक के अंदर ऑयल है, बराबर। और उस ऑयल की डेंसिटी, अब एक बात याद रखना कि जो लिक्विड होता है ना, जिसमें बॉडी गिरती है, उस लिक्विड की डेंसिटी को हमेशा रो जीरो से डिनोट करते हैं। और जो बॉडी होती है, जो बॉडी गिर रही होती है, उसकी डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। ये फिक्स नोटेशन है, समझ में आई बात? तो एक टैंक है, टैंक के अंदर ऑयल है, ऑयल के अंदर एक कॉपर का स्फीयर गिर रहा है, कॉपर के स्फीयर का रेडियस दिया है, कॉपर के स्फीयर की स्पीड दी है। जो भी स्पीड दी हो उसको टर्मिनल स्पीड ही लेने का 6.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो इतना, बराबर। फाइंड क्या करना है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। ईटा इज इक्वल टू 2/9 ए स्क्वायर अपॉन क्या था? ए स्क्वायर अपॉन वीटी रो माइनस रो जीरो इंटू जी। ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो वैल्यू रखते हैं 2 इंटू ए क्या है? ये मतलब 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। रो माइनस रो जीरो सेपरेटली फाइंड करो तो भी चलेगा, यही अंदर फाइंड कर लोगे तो भी चलेगा। बुक में सेपरेटली किया हुआ है, ठीक है। और जी की वैल्यू कितनी? जी की वैल्यू 9.8 और उसको किससे डिवाइड किया है? उसको डिवाइड किया है वीटी से, और वीटी कितना? 6.5 इंटू 10⁻², ठीक है। तो देखो, थोड़ा जितना हो सके उतना ऑर्डर करता हूँ। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 2 8 होता है, तो 8 इंटू 10⁻6 इंटू 8.9 माइनस 1.5 मतलब 7.4, तो 7.4 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 डिवाइड बाय 6.5 10⁻²। तो ईटा इज इक्वल टू 8 इंटू 7.4 इंटू 9.8 जो आया डिवाइड बाय 6.5
तो आया 89.255 जैसा, 89.255 इंटू पावर क्या होगी, ये -2 ऊपर जाएगा, 5 जाएगा -2, 8.92। लेट मी सी, एक मिनट, थोड़ा सा कुछ पावर में प्रॉब्लम, लेट मी सी, 2 है, अच्छा मैंने 9 कंसीडर नहीं किया क्या, जस्ट आई हैव नॉट कंसीडर द 9, एक मिनट, यहाँ पर लिखा तो है मैंने, यहाँ मैंने क्यों नहीं लिखा, ठीक है एक बार फिर से लिख देता हूँ, दिस इज 9 और 2 इंटू 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, फिर 9.8 भी बराबर है, फिर 8.9 माइनस 7.4 इंटू 10⁻³ वो करेक्ट है, फिर डिवाइड बाय 6.5 इंटू 10⁻²। ओके, एक बार फिर से मैं जरा कैलकुलेशन कर लेता हूँ, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट, मेरी भी नहीं होनी चाहिए, आपकी भी नहीं होनी चाहिए। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 इंटू 7.4 4 इंटू 9.8, तो जो आया डिवाइड बाय 9, जो आया डिवाइड बाय 6.5, तो आया 9.91, ठीक है 9.91 के साथ उधर कुछ ऐसा ही है, 9.9172 इंटू 10⁻², पावर को लिखते हैं, ये है -6 + 3 मतलब -3 -1, ठीक है। अब क्या आंसर है, 9.9 इंटू 10⁻⁻1 करेक्ट है, मतलब 0.9 लिखो ना, और चलो बुक के जैसे लिख देता हूँ, बुक में क्या लिखा है 9.9 इंटू 10⁻1, ओके 9.9 इंटू 10⁻1 बराबर। और देखो ईटा का यूनिट तो हमें पता है, क्या था ईटा का यूनिट, पास्कल सेकंड था ना, आगे मैंने समझाया था आपको, पास्कल सेकंड था, पास्कल सेकंड था, पास्कल सेकंड है। पर यहां पर इन लोगों ने क्या किया है, कुछ अलग यूनिट लिखा है, केजी मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, केजी मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब ऐसा क्यों लिखा है लोगों ने, पास्कल सेकंड, अच्छा लिखा है, ओके कोई बात नहीं, चलो यही खत्म हो गया अभी। ऐसा क्यों लिखा उन लोगों ने, पास्कल सेकंड, यही लिखो नो प्रॉब्लम, मैं देखो आपको बताता हूं, पास्कल सेकंड। अब पास्कल मतलब क्या, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन और मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड। न्यूटन मतलब फोर्स ना, फोर्स मतलब मास इंटू एक्सीलरेशन ना, मास मतलब केजी, एक्सीलरेशन मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन ये मीटर स्क्वायर है इंटू सेकंड, बराबर है, समझ में आई बात। तो केजी मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर सेकंड, तो ये हुआ केजी और मीटर सेकंड। आगे इसके जैसा केजी मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स लिखना, मतलब टेस्ट में मत लिखना, अपने समझने के लिए लिखना। क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, ऐसा पूछते हैं केजी मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी, आना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, व्हाट इज दैट, दैट इज द स्पीड, सो दिस इज स्पीड अपॉन एल, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया स्टूडेंट, ठीक है। नाउ हियर वी डिफाइन वन क्वांटिटी दैट इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या डिफाइन कर रहे हैं हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। स्टूडेंट सिटी का स्पेलिंग देखो, SITY, वेलोसिटी में CITY, बराबर। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज ईटा,
ये कैसा सिंबल है, देखो आपको एन ड्रॉ करने का, ऐसे एन, स्मॉल एन, और फिर इसको नीचे खींच दो, दैट्स इट। थोड़ा सा ऐसा आप थोड़ा सा स्टाइलिश अगर आपको करना है तो भी कर सकते हैं, ऐसे भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आया। बट एन मत बना देना, सब स्टूडेंट आर डूइंग लाइक दैट, ठीक है। चलो, तो आई होप कि ये तो आप नहीं करोगे। सो ईटा पता चला, तो ईटा क्या होता है स्टूडेंट, ईटा इज इक्वल टू, मतलब इट इज अ कोएफिशिएंट, जैसे वो बल्क मॉड्यूलस था, यंग मॉड्यूलस था, वैसे ही ये भी एक कोएफिशिएंट है, तो इट इज आल्सो द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट। तो ये क्या है, ये है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट। स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन रेट वो तो मैंने यहां पर लिख ही दिया है, V/L। तो ये क्या होगा, ये होगा FL अपॉन AB। आई जस्ट सीन द फॉर्मूला कि और भी कुछ समझाया है या नहीं। ओके, दे हैव एक्सप्लेन द यूनिट्स, तो मैं यूनिट की भी बात कर लेता हूं आपके साथ, ठीक है। यूनिट और TF, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में ईटा, अच्छा इसको ईटा बोलते हैं, ईटा मतलब देखो ऐसा ETA, ईटा, जैसे थीटा होता है ना, वैसे ईटा होता है, ठीक है। तो जो ईटा है, ईटा का यूनिट क्या होगा, तो ईटा का यूनिट उसका ईटा का यूनिट बहुत ध्यान से समझना। ईटा देखो, इट इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया मतलब प्रेशर, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हुआ बराबर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। इट इज वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड, एंड डिवाइड बाय मीटर, बराबर, ठीक है, ध्यान से समझना। तो ये हुआ। अब मैं क्या करता हूं स्टूडेंट, मैं ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, मैं उसको लिख देता हूं पास्कल। यू नो दैट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज आल्सो नोन एज पास्कल, बराबर। ओके, अब ये जो मीटर है वो अल्टीमेटली जाएगा न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो पास्कल मीटर अपॉन मीटर पर सेकंड, अब ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज पास्कल सेकंड इनवर्स। कैसे आया पता चला, बुक में नहीं समझाया है स्टूडेंट, आप इसको लिखो और इसको समझो, रट मत लो। मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकता था कि इट इज पास्कल सेकंड इनवर्स, आप कंफ्यूज हो जाते, ठीक है। तो यूनिट इज पास्कल सेकंड इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ व्हाट, इट इज द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा का यूनिट है, बराबर। ओके, चलो अभी थोड़ा और कुछ मुझे समझाना है आपको। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम के अंदर। ओके, सो यूनिट ऑफ ईटा, यूनिट ऑफ ईटा क्या है, यूनिट ऑफ ईटा, तो यूनिट ऑफ ईटा है पास्कल सेकंड इनवर्स, PAS स्मॉल s इनवर्स, तो ये उसका यूनिट है। आई बात समझ में, ठीक है। ओके, अब यहां पर मैं आपको एक दूसरा भी यूनिट एक्सप्लेन करता हूं। देखो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना स्टूडेंट, तो उसको मैं लिखता हूं डाइन, न्यूटन की जगह डाइन आता है, आपको चैप्टर नंबर 2 में मैंने एक्सप्लेन किया था। एमकेएस में न्यूटन, सीजीएस में डाइन, डाइन और सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर, डिवाइड बाय सेंटीमीटर पर सेकंड, लिख सकते हैं ऐसा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके ओके, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड, और फिर इसको भी, अच्छा उसके जैसा भी मैं लिखता हूं
सेंटीमीटर डाइन पर सेंटीमीटर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लिखा मैंने, ठीक है। इसका डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर उसके बाद सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड एंड अपॉन सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, मैंने इसको फॉलो किया है। यहां पर फोर्स अपॉन एरिया था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर यहाँ पर अच्छा, मैंने इसके ऊपर से लिखा था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फिर वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड और फिर मीटर। ओके, ठीक है। तो उसी को फॉलो करते हुए ये ऐसा आएगा, बराबर। तो सीजीएस में ये क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड, वहां पर मैंने इसको न्यूमरेटर में ले लिया था। तो डाइन और सेंटीमीटर स्क्वायर ये जाएगा न्यूमरेटर में, तो दिस इज सेंटीमीटर एंड डिवाइड बाय सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। तो दिस इज डाइन और सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकंड। तो दिस इज डाइन सेकंड और सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। डाइन सेकंड और सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, डाइन सेकंड, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। एक सेकंड, आई थिंक कुछ इसमें मिस्टेक है। डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड अपॉन सेंटीमीटर। तो जैसे मीटर को ऊपर ले लिया था, ठीक है, ये ऐसा आएगा, ये सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। इसमें सीजीएस दिया हुआ है बुक के अंदर, पास्कल सेकंड। ओके, यहाँ पर मेरी ही कुछ मिस्टेक हुई है स्टूडेंट। दिस इज करेक्ट, दैट वन इज रॉन्ग। देखो रॉन्ग क्यों है, क्योंकि ये जो सेकंड है ना, ये न्यूमरेटर में जाएगा, तो फिर मैंने उसका इनवर्स क्यों लिया, नहीं आएगा, इनवर्स नहीं आएगा, सॉरी, पास्कल सेकंड। तो ये करेक्ट है। एक्चुअली वो मैंने गलत कर दिया था और वो गलत के बेस पर मैं ये करने जा रहा था, ठीक है। चलो, मिस्टेक, इट इज पास्कल सेकंड, मैंने पहले देख लिया था उसमें, तो मैं उसको ही पहले करेक्ट कर देता, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट, डाइन सेकंड अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज नथिंग, जैसे वहां पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल होता है, ये कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। चलो, अब ये हो गया। अब इसके बाद मैं लिखता हूं डायमेंशन फॉर्मूला फॉर ईटा, ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला। तो ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला लिखने में मैं इसी का यूज करता हूं, पास्कल। अब पास्कल क्या है, पास्कल किसका यूनिट है, पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का तो लिया आपको पता ही है, m1 L-1 T-2। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, बराबर। फोर्स का होता है m1 L1 T-2 डिवाइड बाय L2। सो इट विल बी m1 L-1 T-2, बराबर। और उसको सेकंड से मल्टीप्लाई किया तो आपको T1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस इज m1 L-1 T-1। समझ में आया आपको, ठीक है। ओके, so remember this dimension formula for coefficient of viscosity. I think मैंने चैप्टर नंबर 2 में आपको सारे डायमेंशन फॉर्मूलास एक्सप्लेन किए थे, तो वहां पर ये शायद समझाया होगा मैंने आपको, ठीक है। m1 L-1 T-1 बात आई समझ में। अच्छा, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ स्टूडेंट। जो लिक्विड होता है, सुनिए, लिक्विड, इन दैट लिक्विड इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज होने से क्या होता है, वो पतला होता है। तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीजेस। लिसन, एज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस, इट बिकम्स थिनर, इट डज नॉट रिमेन थिक। लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो थिक होता है, तो पतला हो जाता है। जस्ट लाइक वो जो डामर यूज होता है रोड बनाने में,
ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा होगा कि जब रोड बनता है ना तो डामर को पहले गर्म करते हैं। गर्म क्यों करते हैं? गर्म इसके लिए करते हैं ताकि वो पतला हो जाए, और पतला होने के बाद ही उसको वो रोड के ऊपर इजीली स्प्रेड करते हैं। तो बात क्लियर होगी, एग्री? तो इन द केस ऑफ द लिक्विड इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस देन इट्स बिकम थिनर, एंड थिनर है मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिक्रीजेस। बट इन द केस ऑफ द गैसेस, जो गैस होते हैं उसमें इससे ऑपोजिट होता है कि टेम्परेचर इंक्रीजेस, इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीजेस, सो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीजेस। इसमें ऐसा होता है। अच्छा, यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है बुक के अंदर, तो वो इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ बुक में से पढ़ के शेयर कर देता हूँ, ठीक है? देखो, जनरली द लिक्विड लाइक वाटर, अल्कोहल एक्सेट्रा आर लेस विस्कस। जो वाटर होता है, अल्कोहल होता है, बराबर, वो लेस विस्कस होता है, उसको जमीन पर गिराओ फटाक से स्प्रेड हो जाएगा, बराबर। देन थिक लिक्विड लाइक कोल टार, वो जो मैं टार बोल रहा हूं ना, डामर, वो ही होता है कोल टार। कोल टार, ब्लड, ग्लिसरीन एक्सेट्रा, बराबर। तो वाटर एंड अल्कोहल इज हैविंग द लेस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, whereas the liquid like coal tar, blood, glycerin is having a high coefficient of viscosity. जो जितना पतला होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लेस होती है, जो जितना थिक होता है, जो जितना ज्यादा गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होती है, ठीक है? वी पॉइंट आउट टू फैक्ट अबाउट ब्लड एंड वाटर। सुनना, you may find interesting that blood is thicker, more viscous than the water. जो blood होता है that is more viscous than the water. Further, the relative viscosity of blood remains constant between 0 degree and 37 degree centigrade. मतलब ये एक इंफॉर्मेशन है कि जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम में आ सकती है। क्या इंफॉर्मेशन है कि ईटा फॉर ब्लड एंड ईटा फॉर वाटर, इसका जो रेशियो है, दैट रेशियो इज कांस्टेंट, एक्चुअली ऑलमोस्ट कांस्टेंट। कौन से टेम्परेचर रेंज में? इन 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। और यहां पर एंड में लिखा हुआ है द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस विद द टेम्परेचर। लिक्विड जो है, मैंने लिखा है ना, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस विद द टेम्परेचर। कहने का मतलब ये है कि लिक्विड में टेम्परेचर इंक्रीजेस, विस्कोसिटी डिक्रीजेस, बराबर। व्हाइल इट इंक्रीजेस इन द केस ऑफ गैस, तो गैस में टेम्परेचर इंक्रीजेस, विस्कोसिटी इंक्रीजेस। समझ में आया स्टूडेंट? तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? एंड आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूं, ठीक है? थैंक यू। Now we are solving example 10.9. Question सुनो ध्यान से। A metal block of area 0.10 मीटर स्क्वायर, एक मेटल का ब्लॉक है जिसका एरिया है 0.10 मीटर स्क्वायर, ठीक है? इज कनेक्टेड टू 0.010 किलोग्राम मास via a string that passes over an ideal pulley considered massless and frictionless. Figure will be given to you. A liquid with a film thickness of 0.30 millimeter, जो लिक्विड की जो फिल्म है, स्टूडेंट, फिल्म मतलब लेयर, ठीक है? फिल्म मतलब मूवी नहीं, यहां पर फिल्म मतलब लिक्विड का लेयर, उसको फिल्म कहते हैं, ठीक है? तो वो जो फिल्म है उसकी थिकनेस दी हुई है 0.30 mm, तो उस थिकनेस को मैं डिनोट करूंगा L से। 0.30 लिखा है ना, 0.3 लिखो तो भी एक ही मतलब है उसका। इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूं, 3 × 10⁻⁻⁴ मीटर इज प्लेस्ड बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल।
when release the block moves to the right with a constant speed of 0.085 meter per second. Speed 0.085 meter per second. Find the coefficient of viscosity of the liquid. Eta we have to determine. समझ में आया? Okay. Student, I explain you the question once again. देखो, एक टेबल है, टेबल कौन सा है? ये दिख रहा है, मैं फिंगर मूव कर रहा हूँ, ये एक टेबल है, ठीक है? मतलब टेबल का एक स्मॉल पार्ट शो किया है. इस टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा है, ये जो रेक्टेंगल है वो ब्लॉक है, और ब्लॉक का जो एरिया है, ठीक है, मतलब कौन सा एरिया? ब्लॉक की जो सरफेस टेबल के ऊपर रखी है उसका एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर, ठीक है. दिस ब्लॉक इज कनेक्टेड टू अ रोप एंड रोप इज पासिंग ओवर अ पुली एंड एट द एंड ऑफ द रोप देयर इज अ ब्लॉक ऑफ मास 0.01 किलोग्राम. समझ में आया? बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल एक फिल्म है, एक लिक्विड की फिल्म है, मतलब कि ब्लॉक को जिस टेबल के ऊपर रखा है तो वो ब्लॉक और टेबल के सरफेस के बीच में लिक्विड है, ठीक है. और उस लिक्विड की जो थिकनेस है, वो जो फिल्म है, लिक्विड फिल्म है, दैट इज 0.30 मिलीमीटर. समझ में आया? एक लिक्विड का लेयर है और उस लेयर की थिकनेस है 0.30 मिलीमीटर, जिसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है. फिर क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ दिस ब्लॉक, ये ब्लॉक मतलब ये जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है वो ऐसे नीचे गिरता है, तो दिस ब्लॉक, ये जो स्फीयर है, दिस स्फीयर मूव्स डाउनवर्ड, बराबर. तो स्फीयर ऐसे नीचे की तरफ मूव करता है, तो ये जो ब्लॉक है वो ब्लॉक ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव करता है. समझ में आया? तो ब्लॉक हॉरिजॉन्टली मूव करता है विद स्पीड कितनी? 0.085 मीटर पर सेकंड, ठीक है. फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड. अब स्टूडेंट यहाँ पर होगा क्या, आप थोड़ा सा ध्यान से समझो. देखो, ये जो ब्लॉक है ना, whose weight is mg, तो ड्यू टू दिस वेट ऑफ द ब्लॉक देयर विल बी अ टेंशन इन द रोप. ये जो रोप है, ये रोप के अंदर टेंशन प्रोड्यूस होगा, कैपिटल टी. टेंशन प्रोड्यूस होगा, कैपिटल टी. तो ये जो मैंने टेंशन शो किया है आपको चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स में, मैंने इस तरह से टेंशन को शो किया था इनटू म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शंस. आई बात समझ में? तो ये है टेंशंस. अच्छा, अब ये जो टेंशन है वो टेंशन किसके वजह से है? ये mg के वजह से है. अब सुनिए एक बात समझो कि ये जो टेंशन की डायरेक्शन है ना, दैट इज इन सच अ वे दैट द ब्लॉक मूव्स हॉरिजॉन्टली. ये जो ब्लॉक है ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव करेगा. The layer of the liquid which is in contact with the block, सुनना बात को ध्यान से. The layer of the liquid which is in contact with the block moves with the same velocity as the velocity of the block. मतलब जहां पर मैंने पेन रखी है वहां पर लिक्विड का जो लेयर है वो ब्लॉक की स्पीड से मूव करेगा, और जहां पर मैंने पेन रखी है अब वहां का जो लेयर होगा वो स्टेशनरी होगा. सो जो ऊपर वाला लेयर है वो सर्टेन वेलोसिटी से मूव करेगा, जो सबसे नीचे वाला लेयर है दैट विल बी एट रेस्ट, और उन दोनों के बीच में जो डिफरेंट लेयर्स होंगे, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंट लेयर्स होंगे, दे विल हैव अ डिफरेंट वेलोसिटी. सो देयर विल बी अ लैमिनर फ्लो. वो जो लिक्विड की फिल्म है उसमें देयर विल बी अ लैमिनर फ्लो, और लैमिनर फ्लो होगा तो विस्कस फोर्स होगा, विस्कस फोर्स होगा तो विस्कोसिटी होगी, एंड वी वांट टू डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. आई बात समझ में? ठीक है. तो यहाँ पर एक छोटा सा स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है. व्हाट इज दैट स्टेटमेंट? मैं लिख देता हूं कि T इज इक्वल टू टेंशन इन स्ट्रिंग, जो भी है, स्ट्रिंग है, रोप है, इज इक्वल टू वेट ऑफ, क्या है वो, बॉडी है, ब्लॉक है, क्या वर्ड यूज किया है उन लोगों ने, अ मेटल, एक मिनट, स्ट्रिंग पासिंग और आइडेंटिटी,
कुछ यहाँ पर मेथड वेट ऑफ सस्पेंडेड मास, मतलब वो जो स्फीयर है ना, मैं ढूंढना था कहीं उसके लिए स्फीयर वर्ड यूज किया है या नहीं, बट इसके लिए कोई स्फीयर वर्ड यूज नहीं किया, उन लोगों ने लिखा है कि सस्पेंडेड मास, पर आप लिख सकते हो वेट ऑफ स्फीयर ऐसा। तो ये कितना होगा, ये होगा mg, दिस इज mg। तो m कितना है स्टूडेंट 0.01 और g की वैल्यू 9.8 दे सकते हैं, यहां पर कैलकुलेशन में यस 9.8 ही लिया है, दिस इज 9.8। तो ये कितना होगा 0.098 न्यूटन, बराबर। अब ये जो टेंशन है, ये जो फोर्स है, दैट इज एक्टिंग टेंजेंशियली टू द लिक्विड सरफेस, सो दिस T act tangentially to लिक्विड फिल्म लिखो, समझ में आया। तो हम कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, शियरिंग स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस। तो शियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, शियरिंग स्ट्रेस कोई भी स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना कैलकुलेट, अच्छा फोर्स मतलब टेंशन T बाई ए, तो T कितना 0.098 और एरिया कितना 0.1, तो ये हुआ 0.0098, मतलब ये हुआ 9.8 इंटू 10⁻⁻⁻⁰3 न्यूटन। समझ में आया, ये है शियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू। अब स्टूडेंट क्या फाइंड करना है, स्ट्रेन रेट। याद है ना, मैंने आपको टॉपिक में एक्सप्लेन किया था, यू हैव टू फाइंड स्ट्रेन रेट। अब ये स्ट्रेन रेट क्या होता है, तो स्ट्रेन रेट होता है V बाई एल। आपको याद होगा टॉपिक में समझाया है V बाई एल। तो V क्या है 0.085 और L मतलब क्या, L मतलब लेंथ, थिकनेस। तो थिकनेस क्या है लेयर की थिकनेस है 0.3 इंटू 10⁻⁴, 3 तो इसको सॉल्व करते हैं, 0.085 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो आंसर आता है 0.02833, 0.02833 10⁻⁴। तो ये आता है स्टूडेंट 2.833 इंटू 10⁻, कितना आएगा -6। इट इज अ स्ट्रेन रेट, इट इज व्हाट, इट इज अ स्ट्रेन रेट, बराबर, ठीक है। अब इसका क्या यूनिट लिखे हम, ये होगा मीटर पर सेकंड इनवर्स। क्या होगा, मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर, तो इट इज सेकंड इनवर्स। बुक में क्या यूनिट लिखा है क्या उन लोगों ने इसका स्ट्रेन रेट का, नहीं, उन लोगों ने कोई यूनिट नहीं लिखा है, उसका लिखा है शियरिंग स्ट्रेस का, और मैंने देखो गलत लिखा, सॉरी, हाँ, क्योंकि स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, उन लोगों ने इसका यूनिट नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूं और आप भी लिखना सेकंड इनवर्स, ठीक है। ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। तो ईटा क्या होता है, ऐसा लिखना स्टूडेंट, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट। तो स्ट्रेस कितना है, स्ट्रेस मतलब शियरिंग स्ट्रेस, वो कितना है 9.8 10⁻⁻3 और ये शियरिंग स्ट्रेन रेट कितना आया 2.833 10⁻⁻6। तो देखो 9.8 को डिवाइड करते हैं 2.833 से, तो आंसर आता है 3.4592 और पावर होगी 10⁻3। लेट मी चेक,
3.46 एक सेकंड, कुछ पावर का प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से, पावर का प्रॉब्लम है। जस्ट ए मिनट, मेरी वैल्यूज में चेक कर लेता हूँ। 9.8 ठीक है, ये तो बराबर है। 0.10, हाँ यहाँ पर कुछ लग रहा है। यस यस यस, देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई। इसका आंसर है 0.98 आएगा। स्टूडेंट 0.98, दिस इज 0.98। तो फिर मैंने इसको 10⁻⁻1 एज्यूम कर लिया, ठीक है, और मेरे ख्याल से ये तो राइट ही होगा, फिर भी देख लेता हूँ। 0.98 0.98 पावर इसकी -3 आती है। इसका 10⁻⁻1 के ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब 0.98। चलो वो तो बराबर है। फिर स्ट्रेन रेट में 0.085 और फिर ठीक है, आना चाहिए आंसर अब तो। पॉइंट फिर भी एक बार, अच्छा देखो ये -4 है, ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा ना। तो आज मुझसे कैसी मिस्टेक्स हो रही है, तो ये होगा 2, दिस विल बी 2, राइट। हाँ दिस विल बी 2, तो यहां पर होगा 2। ओके, अब देखता हूं मैं 0.98 डिवाइड बाय 2.833, तो ये आता है 0.3459, 0.3459 और पावर होगी -2, तो ये है 3.459 इंटू 10⁻³ बराबर। तो अब आंसर 3.46 इंटू 10⁻³, ठीक है, चलो वो बराबर ही है। 3.46 10⁻³ यूनिट क्या था, पास्कल सेकंड। तो ये हमारा आंसर है, ईटा का आंसर, राइट।